Welcome to my channel Mathematics Rose, and now the topic is limit of a function, lecture 2. Now the first type of question I am going to explain करने जा रहे हैं limit x tends to a x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a to the power n minus 1. Another formula is binomial theorem. 1 plus x to the power n, where n is integer, positive integer, 1 plus nx, or n may be rational number. Here n also may be rational number, but n is not irrational number, plus n minus 1 upon factorial to x square, and so on. At the last we can write nc n x to the power n, and so on. So it will go to infinity. So now I am taking one question related to it. First question I am taking, and we have to solve it. A little bit easy question I will take first. Suppose we have to find limit, evaluate means find the value, limit h tends to 0, x plus h to the power 1 by n minus x to the power 1 by n upon h. So here this is n, this is h, this is n. So here function is, this is the function. Now this is not in the form of this. Still, if this type of question will come, in general you have to use this formula. It will be very easy for this. But here x is written. See, here x is written. So we have to make this x as 1. अगर हम लोग x को 1 कर देंगे तो हम लोग फिर इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. देखिएगा यहाँ पे x टू द पावर 1 बाई n है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे x प्लस h है. तो हम लोग पहले x प्लस h को ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस h बाई x ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेंगे, और इसके जगह में x प्लस h की जगह में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0, करके ब्रैकेट देते हैं, x 1 प्लस h बाई x अपॉन होल टू द पावर 1 बाई n minus x to the power 1 by n upon h. So this in place of x plus h I have written x into 1 plus x plus h upon x. ये यहाँ से ये आप लिख सकते हैं इस तरह से. x कॉमन लीजिएगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरे टर्म को h को x से डिवाइड कीजिएगा तो आपको लिखना होगा h बाई x अपॉन 1 बाई पावर में हो जाएगा 1 बाई n माइनस x टू द पावर 1 बाई n. अब ये जो पावर है यहाँ भी आएगा, ये पावर यहाँ भी आ जाएगा, दोनों में आएगा, बिकॉज आप जानते हैं ए बी में पावर अगर m है तो a टू द पावर m होगा इंडेक्स रूल में, और b में भी पावर m होगा. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, x to the power 1 by n, and then 1 plus h upon x to the power 1 by n minus x to the power 1 by n upon h. This we can write. Now here is the common factor, x to the power 1 by n and x to the power 1 by n is the common factor. We will take common, x to the power 1 by n को कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे आपका 1 प्लस h बाई x टू द पावर 1 बाई n माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए ये आपका 1 प्लस x टू द पावर n के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है.
x के जगह में यहाँ पर h बाई एक्स है और n के जगह में 1 बाई n है, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। इसको देखिए हम लोग ब्रेक करते हैं, सॉरी एक्सपेंड करेंगे using binomial theorem. This we will use x to the power 1 by n and then 1 plus 1 by n into h by x, then 1 by n, 1 by n minus 1 upon factorial 2, then h is h by x whole square and so on. And at the last here is minus 1, so here you will have to write minus 1 by h. Okay, this minus sign, this minus 1 plus 1 minus 1 will cancelled out. देखिए अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h बाई एक्स कॉमन है, यहाँ भी h बाई एक्स आगे हायर पावर में भी रहेगा, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे। 1 h बाई एक्स आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया 1 बाई n और यहाँ पे 1 बाई n इंटू 1 बाई n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, एक h बाई एक्स रहेगा एंड सो ऑन। इसमें हायर पावर ऑफ h बाई एक्स होगा। नेक्स्ट होगा h बाई एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय h। सो ये h इससे कैंसिल होगा, आप h के जगह में 0 पुट कीजिएगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं लिमिट साइन हट जाएगा, x to the power 1 by n into 1 by x, this is 1, and here is 1 by n and here is 0, because here if you will put 0 the whole term will becomes 0 and higher power becomes also 0 and so on. So therefore this can be written as 1 by n. First I am writing x to the power 1 by n by x, this into this, x to the power 1 by n, and now we will see here 1 by n, x to the power 1 by n minus 1, so this is 1 by n, x to the power 1 minus n upon n. So this is the answer. Hope you will understand it. अदरवाइज यहाँ पे रैशनलाइज करने जाइएगा तो आपको थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, आपको रैशनलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now this is the question. Here we have to find limit x tends to 3, x to the power 7 by 2, 3 to the power 7 by 2 upon root under x minus root under 3. Now first of all we have to change this function in terms of limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, which is equal to n a to the power n minus 1. This is first type. So now solution. Limit x tends to 3, x में power 7 by 2 and 3 में power 7 by 2, and here x में power 1 by 2, square root है 1 by 2 and minus 3 में power 1 by 2. अब लिमिट में अगर हम लोग लेते हैं तो कोसेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों लिमिट लिया जाता है। लिमिट का जो प्रॉपर्टीज है x टू a है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कोई फंक्शन होगा तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू a जी एक्स होगा।
तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 7/2 माइनस 3 to the power 7/2 upon limit x tends to 3 x to the power 1/2 3 to the power 1/2. Now this whole expression में divide numerator and denominator by, यहाँ x माइनस a है, a की जगह में यहाँ 3 है, तो x माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो लिमिट x टेंस टू 3 x to the power 7/2 minus 3 to the power 7/2 upon x minus 3 divided by limit x tends to 3 x to the power 1/2 minus 3 to the power 1/2 upon x minus 3. So now in the numerator you see this is in this form, तो ये फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे a की जगह में आपका क्या है 3 है, n की जगह में है आपका 7/2, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में a की जगह में है 1/a की जगह में 3 और n की जगह में हाफ 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा a फार्मूला लगा देंगे n a to the power n minus 1, तो n यानी 7/2 और 3 to the power 7/2 माइनस 1 अपॉन यहाँ 1/2 हो जाएगा n की जगह में, और 3 to the power 1/2 minus 1, this to cancel, so it is equal to 7 into 3 to the power 7 minus 2 upon 2, and here 3 to the power 1 minus 2 upon 2. So now it is equal to 7 into 3 to the power 5/2 and here 3 to the power minus 1/2. तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 7 into 3 to the power 5/2 प्लस बेस सेम है तो ये ऐड भी हो जाएगा, तो ये आपका ऐड हो जाएगा, एंड 7 3 to the power 6/2 हो गया, यानी 3, यानी 7 into 3 to the power 3, 7 into 27, so 49 4 189, so limit of the function is 189. So hope you will understand it. So this is a question डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चंस जो होगा ये भी सिंपल ही है, लेकिन आपको सिर्फ चेंज कर देना है इस फॉर्म में। चेंज करने के लिए आपको देखना है a क्या है n क्या है, तो नीचे में करिए आपको x माइनस a से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो a की जगह में जो है आप देख लीजिएगा, a की जगह में 3 है 4 है, जो भी दिया हुआ होगा उससे आपको डिवाइड कर लेना है, और ये लिमिट जो है चूँकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो फंक्शन है तो ऊपर का लिमिट लग जाएगा, नीचे में भी लिमिट लग जाएगा। जनरली ये स्टेप्स छोड़ते हैं बच्चे लोग ऐसे, चूँकि अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप में लिखना चाहिए ताकि आपको मालूम हो क्यों लिखना है, ठीक है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन I have taken, find all the possible value of a, here a, if limit x tends to a, x to the power 3 minus a to the power 3 upon x minus a is equal to limit x tends to 2, x to the power 4 minus 16 upon x minus 2. Here a is not given in this function and here everything is given. So from this and this, so first of all we will evaluate this, and after that using the formula of this limit x tends to a, x to the power n, a to the power n divided by x minus a, वो फार्मूला यूज करके हम लोग को
ए का वैल्यू निकालना होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a⁻³ ये हो गया, और यहाँ पे इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 x⁴, तो 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16, 2⁴ एंड अपॉन x - 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की जगह में यहाँ पे देखिए कितना है 2 है, n की जगह में 4 है। यहाँ पे लिख देते हैं 4 2 में पावर 4 - 1, ये हो गया इसका पूरा वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला एज यू नो दैट लिमिट x टेंड्स टू a⁴n x⁴n minus a⁴ upon x minus a is equal to n a⁴n minus 1। ये हो गया। अगर ये है तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 4 इंटू 2⁻3, यहाँ पे आया है, इधर से ले लेंगे 3 a⁴2, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 हो जाएगी ये अपॉन 3, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4 इंटू 8 32 अपॉन 3। अब लिख सकते हैं हम लोग 16 इंटू 2 अपॉन 3, इट इज 4√2 अपॉन √3। अगर आप इसको चाहिए तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 4√6 अपॉन 3, ये आपका आंसर होगा। तो ये आप आराम से बना लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन इससे आ सकता है ये फॉर्मूला से। तो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस just I'm going to explain this last one as written. Okay, so now we are coming to the next question, fourth question. Now यहाँ पे we have to find the limit x tends to 1 x⁴7 minus 2 x⁵ plus 1 upon x³ minus 3x² plus 2। यहाँ पे पूरा फंक्शन जो है आप देखिए, सॉल्यूशन इस फंक्शन में अगर हम लोग 1 पुट करेंगे, फंक्शन जो है f(x) इज इक्वल टू x⁴7 minus 2 x⁵ plus 1 अपॉन x³ minus 3x² plus 2 है। अगर आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो 1 में पावर 7 minus 2, 1 में पावर 5 plus 1 अपॉन 1 में पावर 3 minus 3 into 1² plus 2, ये 1 हो गया -2 plus 1, and then here is 1 minus 3 plus 2, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर हो जाता है तो दिस इज इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए x टेंड्स टू 1 है तो पुट कीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एंड टेक as h tends to 0, or where h tends to 0 you can write h is very small positive number, and now limit h tends, we can write h tends to 0, this h tends to 0, और जहाँ x है इस क्वेश्चन में 1 में है ना, वहाँ पे पुट करेंगे क्या 1 प्लस h, 1 प्लस h में पावर 7 minus 2, 1 plus h में पावर 5 plus 1 अपॉन 1 plus h में पावर 3 minus 3, 1 plus h में पावर 2 and then 2। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम में अब सिर्फ 1 plus x⁴n का जो एक्सपेंशन है
वो एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस nn माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एंड सो ऑन है। तो इसका आप बस 2 ही टर्म लीजिए, अगर तीसरा टर्म भी ले सकते हैं। तीसरा टर्म लीजिएगा तो लंबा होगा, तो इजी करने के लिए हम लोग फर्स्ट 2 ही टर्म ले रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस, यहाँ n की जगह में nx लिखे हैं तो यहाँ पे n की जगह में 7 है, तो 7h लिख देते हैं। यहाँ पे 2 1 प्लस यहाँ पे 5h इसको लिख दिया, और ये 2 हो गया, तो ये -3h लिख दिए यहाँ 3 1 प्लस 2h लिख देंगे, और यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, हायर पावर h जो भी होगा वो 0 आ जाता है, इसी वजह से 1 प्लस 7h माइनस 2 माइनस 10h प्लस 2, एंड देन हियर इज 1 प्लस 3h माइनस 3 माइनस 6h प्लस 2। तो देखिए ये 2 ये 1 3 हो गया, और ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 1 ये 2 3 हो गया, और यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 ये 1 2 हो गए, इस 2 से ये कैंसिल हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, 7h में 10h घट गया तो माइनस 3h, और यहाँ पे 3h में 6h माइनस 3h, ये कैंसिल पूरा, तो लिमिट हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ 1 हो गया h टेंड्स टू 0। अगर लिमिट है x टेंड्स टू a कुछ होता है और कोई कांस्टेंट है c, तो c का कांस्टेंट का लिमिट c ही होता, तो इसी वजह से लिमिट ऑफ 1 का जो भी वेरिएबल हो अटेंड कर रहा हो कांस्टेंट का लिमिट वही होगा, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। With the help of binomial theorem, it becomes very easy. If you will take only 2 terms, it is very easy. If you will take 3 terms of the expansion, then it is a little bit long, but still that is going to be 0. उसके बाद भी थर्ड टर्म आपका h के में कुछ 0 डालना होगा और वो 0 हो जाएगा। तो होप यू आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। Now here I have taken next question. Evaluate limit x tends to 3 x to the power 4 minus 81 upon 2x square minus 3x minus 3. So this is the question. And see, here is x to the power 4 and minus 81. So as you know that 3 to the power 4 is equal to 81. So we are coming to the solution. देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3 है, यहाँ भी 3 प्लस h लेके बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला लेके बना रहे हैं। जब पावर बहुत ज़्यादा हो तो बाइनोमियल थ्योरम आप ले लीजिए, और जब पावर कम हो और फार्मूला में सेट हो रहा हो तो फार्मूला में सेट करके ये फार्मूला जो है आपका लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n a to the power n अपॉन x माइनस a, इस फार्मूला में आप बना दीजिए। जब पावर छोटा हो इस फार्मूला में आप बना दीजिए। बड़ा भी पावर में होगा लेकिन तुरंत अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो आप इस फार्मूला से बनाइए, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप a प्लस h लेकर के बाइनोमियल थ्योरम से बनाइए। अब देखिए यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, x टू द पावर 4 एंड यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो 3 2 6 हो रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 3। So I think it is
मल्टीप्लिकेशन करने से -6 होना चाहिए। यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है, ये -6x और यहाँ पे +1x आएगा। +1x मिडिल टर्म स्प्लिट करने में ये लेंगे तो लिमिट, अब न्यूमरेटर का लिमिट लिख देंगे एज इट इज x⁴ -3⁴ और डिनोमिनेटर में यहाँ पे इक्वल टू देंगे और लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे ये देखिए ये पूरा में आपका 2x कॉमन हो गए, x -3, यहाँ 1 कॉमन है x -3, फैक्टराइज खाली किए हैं। अब देखें यहाँ पे x -3 है, यहाँ पर x -a है, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x -3 से। आप एक चीज़ से देखिएगा, यहाँ x टेंड्स टू 3 है, तो अगर 3 इधर लगेगा तो x -3 है, तो उतना ही से डिवाइड करना पड़ेगा। आप समझ देख लीजिए, समझ जाइए इसको, है ना। तो ये होगा, यहाँ पे देखिए डिवाइड कर रहे हैं इससे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁴ -3 upon x -3 and here limit x टेंड्स टू 3, यहाँ कॉमन है x -3 and 2x + 1 बाई x -3। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसका क्या होगा, ये पूरा ये फॉर्म ले रहा है, तो यहाँ पे हो गया 4, a की जगह में है 3, n की जगह में 4 है, a की जगह में 3 है, तो 3⁴ -1 एंड यहाँ पे आपका 3 पुट कीजिए, 2 × 3 + 1, यहाँ पे आपका 4 × 3⁴ बाई 6 + 1, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 27 है, ये इट इज 27 × 4 108 हो रहा है ये upon 7। तो hope this is the answer and hope you this is easy question. So hope please like, subscribe and share my videos as well as subscribe it, and the next type of question I will do in the next video. Thank you. तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसमें हम लोग आगे चलेंगे, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, टिपिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और शॉर्टकट भी मेथड भी डिस्कस करेंगे।